اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک سلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا معزز حضرات، یہ امام الکلام کلام الامام امام الکلام سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک مشہور زمانہ کلام جو کلام الامام امام الکلام جسے کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت ایک امام وقت تھے، ان کا کلام بھی کلاموں کے اندر امام کہلاتا ہے، کلاموں کا امام۔ تو اعلیٰ حضرت کا مشہور زمانہ کلام اور ان کا دیوان ہدایش بخشش کے اندر شفاعت کے سلسلے میں کہ ایک کلام ہے کہ حضور کی شفاعت کبریٰ کی منظر کشی کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت نے کلام کو نظم فرمایا ہے، اور عاشق رسول تھے، امام عشق و محبت تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے خیال میں، ان کی شفاعت لینے کے خیال میں اور شفاعت پانے کے لیے ان کو کتنی بڑی حسرت تھی اور کتنی آس و امید میں وہ شفاعت کے لیے ہمہ وقت جو ہے اسی آس و امید میں تھے کہ میرے سرکار کی شفاعت کبریٰ ہمیں کیسے نصیب ہو۔ وہ جانتے ہیں کہ شفاعت انہی لوگوں کی ہوگی جو لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیئہ کار ہیں، کیونکہ نیکوکار اپنی نیکیوں کے سبب، اپنے اعمال حسنہ کے سبب اپنے ٹھکانے لگ جائیں گے، لیکن گنہگار لوگ جس کا کوئی نہ ناو ہے، نہ بیڑا ہے، نہ نیا ہے، وہ لوگ کیسے پار لگیں گے؟ تو انہی لوگوں کو شفاعت رسول ہی کی امید ہے۔ اسی امید پر سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار کی طرف استغاثہ کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا گنہگار امتی ہوں، میرے پاس نہ نامہ اعمال اچھا ہے اور نہ میرا کوئی ظاہری اسباب ہے، بس آپ پر اعتماد اور بھروسہ اور توکل ہے۔ آپ ہماری خبر گیری کیجئے اور قیامت کے پرآشوب ماحول میں ہماری خبر لیجئے اور ہماری شفاعت فرمائیے۔ سرکار فرماتے ہیں، اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر، اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر۔ یہاں میرے سرکار کو سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک شافع امم سے خطاب کیا، دوسرا لفظ شہ ذی جاہ۔ شافع امم کا مطلب ہوتا ہے امتوں کی شفاعت فرمانے والے، یعنی جو لوگ قابل شفاعت ہیں، گنہگار امت، ان کی آپ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، اور جو لوگ نیکوکار ہیں ان کی درجات کو بھی آپ بلند فرمائیں گے۔ اگرچہ گنہگار نہ ہو، نیکوکار ہیں، لیکن کم درجے میں ہیں، نچلے طبقے میں ہیں، سرکار کی شفاعت سے وہ لوگ بھی اونچے طبقے میں جائیں گے، اور جو لوگ گنہگار ہیں، قابل جہنم ہیں، تو وہ بھی سرکار کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع امم فرمایا، یعنی امتوں کی شفاعت فرمانے والے، شہ ذی جاہ مانے عزت والے، شوکت والے، مرتبت والے بادشاہ، مانے آپ عزت والے ہیں، شان والے ہیں، شوکت والے ہیں، سرکار امتوں کی شفاعت فرمانے والے ہیں۔ قرآن کریم نے آپ کو شافع امم کہا ہے، خود آپ نے حدیث کے الفاظ میں اپنے آپ کو انا شفیع المذنبین فرمایا ہے، لہذا اسی الفاظ کے صدقے میں آپ سے استغاثہ کر رہا ہوں کہ للہ آپ میری خبر لیجئے اور قیامت کے اس حسرت ناک اور حیرت ناک ماحول میں ہماری خبر لیجئے۔ للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، اللہ کے واسطے، جو اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت آپ کو حاصل ہے، اسی قربت اور اسی جو ہے الفت و محبت کے وسیلے سے آپ میری شفاعت فرمائیے اور قیامت کے اس گھٹا ٹوپ اندھیر ماحول میں ہماری خبر لیجیے۔ دریا کا جوش، ناؤ نہ بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر۔ اگر کوئی سمندری سفر کر رہا ہے،
समंदर पूरे जोश में है और उसमें कोई इंसान समंदर में पड़ गया, उसके पास न नाव है, न समंदर को पार करने वाला कोई बेड़ा है, और न बेड़े और नाव का कोई मल्लाह और माझी है, ना खुदा है जो हमारे बेड़ा को पार लगाएगा। गोया कि हर तरफ से हम बेसहारा होके हैं। दरिया का जोश है, नाव भी नहीं है, कोई बेड़ा भी नहीं है, कोई मल्लाह और ना खुदा भी नहीं है। या रसूल अल्लाह, ऐसे आलम में मैं डूबा जा रहा हूँ। मेरा ये आखिरी आलम है, जबकि नाव भी नहीं है, बेड़ा भी नहीं है, मल्लाह भी नहीं है, तो मेरे बचने का क्या भरोसा है। मैं डूबा तो मैं डूबने ही के लायक हूँ, डूबने को जा रहा हूँ। तो ऐ मेरे आका, इस माहौल में, इस आलम में आप मेरी खबरगिरी फरमाइए। सरकार, आप शाफ़े उम्मत हैं, क़यामत के इस घटाटोप माहौल में मेरी शफात फरमाइए। गोया के जैसे कि समंदर में वो इंसान जिसके पास ना कोई ना खुदा है, ना बेड़ा है, ना नाव है, वो डूबने के करीब है, इसी तरह हश्र के मैदान में मैं भी डूबने के करीब हूँ। या सरकार मदीना, मेरी खबर लीजिए और मेरी नाव को पार लगाइए। मंजिल कड़ी है रात अंधेरी में नाबलद। ये मंजिल जो है हश्र की मंजिल बड़ी कड़ी मंजिल है। यहाँ का सवाल व जवाब बहुत कड़ा होगा, यहाँ का पुरसिश अमाल बहुत सख्त होगा, और यहाँ कुर्सी अदालत यहाँ बिछेगी जो बड़ा कड़ा माहौल होगा। रात अंधेरी में नाबलद, गोया के अंधेरी रात में अगर कोई मुसाफिर किसी जगह जाए जो नाबलद हो, माने पहली मर्तबा नई जगह में अंधेरी रात में अगर पहुँचे तो वो क्या करे, किधर को जाए, किससे पूछे। ये तो नाबलद है, कुछ नहीं जानता, और रात अंधेरी है। तो इसी तरीके से क़यामत की मंजिल बड़ी कड़ी है। गोया कि जिस तरीके से नए शहर में अंधेरी रात में एक नाबलद परेशान होता है, इसी तरीके से यह हश्र की कड़ी मंजिल में और अंधेरी रात की तरह घटाटोप माहौल में मैं एक नाकारा नाबलद इंसान आ पड़ा हूँ। या सरकार, आप खिज़्र राह हैं। जिस तरीके से हज़रत खिज़्र भूले भटके हुओं को राह दिखाते हैं, और जिस तरीके से लोग अंधेरी रात में चाँद की मदद से क्या कहते हैं, सिमत और जहत को मालूम करते हैं, किधर पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, चाँद को देखकर मालूम किया जाता है। और खिज़्र जो है लोगों को रास्ता बताते हैं। तो मेरे सरकार, इस कड़ी मंजिल में अंधेरी रात में मैं जो नाबलद हूँ और इस हश्र के मैदान में, इस जंगल में आ पड़ा हूँ, तो आप मेरे खिज़्र हैं, रास्ता बताने वाले हैं, बता दीजिए। आप मेरे माहे अरब हैं, चाँद हैं, चाँद से इंसान को सिमत और जहत मालूम होता है। लिहाजा हम किधर जाएंगे, किस तरफ रास्ता लेंगे, आप मुझे रास्ता बता दीजिए और मुझ नाचीज़ की शफाअत फरमाकर मेरा बेड़ा पार लगा दीजिए। पहुँचे पहुँचने वाले तो मंजिल मगर शाह, उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले खबर। पहुँचे पहुँचने वाले तो मंजिल मगर शाह, जो पहुँचने वाले थे वो तो मंजिल पहुँच चुके। जो रोज़ा वाले थे, नमाज वाले थे, अमल वाले थे, दान खैरात वाले थे, इल्म वाले थे, ईमान कामिल वाले थे, वो लोग अपने तक़वा और तहारत के सबब, अपने आमाल के सबब अपनी मंजिल को पहुँच चुके। मगर शाह, उनकी जो थक के बैठे सरे राह ले खबर। जो लोग थके हारे हैं, चलने की ताकत नहीं है, पैर में क़ुव्वत नहीं है, दिल में हिम्मत नहीं है, यानी कि उसके पास ना आमाल है, ना ईमान कामिल है, ना अमल है, ना उसके पास बज़ाहिर असबाब है कि जिसके भरोसे में वो चले और कामयाबी की मंजिल में बढ़े। तो या सरकार, ये नाकारा इंसान जो थक के चूर हो गया है और चलते चलते रास्ते के किनारे बैठ गया, पैर नहीं उठ रहा, दिल नहीं उठ रहा, इस आलम में न मेरा पैर काम कर रहा है, न दिल काम कर रहा है। सरकार, आप ही मेरी मदद फरमाइए और मेरी शफाअत फरमा दीजिए, मेरी बिगड़ी बना दीजिए। जंगल दरिंदों का है, जंगल दरिंदों का है, मैं बेयार शब करीब।
घेरे हैं चार सिमत से बदखाह ले खबर। जिस तरीके से जंगल में दरिंदे रहते हैं और उस दरिंदों के जंगल में अगर कोई बेयार आदमी रात के वक्त पहुंच जाए तो उसका क्या हाल होगा। रात की अंधेरी चारों तरफ छाई हुई है और एक इंसान जिसका ना कोई दोस्त है न यार है वो जंगल में पहुंच चुका। ऐसे जंगल में जहां दरिंदे ही दरिंदे हैं, चीर फाड़ खा जाने वाले दरिंदे हैं, ऐसे हाल में वो शख्स जंगल में पहुंच चुका है। अब उसका क्या होगा। इसी का नक्शा बनाकर आला हजरत ने फरमाया, जंगल दरिंदों का है मैं बेयार शब करीब, घेरे हैं चार सिमत से बदखाह ले खबर। या रसूल अल्लाह, मैं अपने देश में अपने मुल्क में ऐसे आलम में हूँ कि चारों तरफ से बदमज़हबों का पहरा लगा हुआ है। वहाँ भी एक तरफ, देवबंदी एक तरफ, राफजी शिया एक तरफ, कादियानी एक तरफ, यहूदी ईसाई एक तरफ, हर गुमराह हर बातिल फ़िरका हमारा पीछे लगा हुआ है। और शब करीब है, अंधेरी रात है और मेरा कोई यारो मददगार भी नहीं है। हर तरफ दरिंदे मेरे पीछे लगे हुए हैं। इस रात के मौसम में जो बे यारो मददगार इंसान दरिंदों के जद में पड़ चुका है, ऐसे में मेरी मदद फरमाने वाला सिवाय आपके और कौन है। या सरकार, चार सिमत से बदखाह यानी बुरा चाहने वाले मुझे घेरे हुए हैं, लिहाजा इन बदखाहों की जद से मुझे बचाइए और मेरी बिगड़ी बनाइए, मेरा बेड़ा पार लगाइए। सरकार, ये दुश्मनों के चंगुल से हमें छुड़ा लीजिए। जंगल दरिंदों का है मैं बेयार शब करीब, घेरे हैं चार सिमत से बदखाह ले खबर। मंजिल नहीं अजीज़ जुदा लोग नाशनास, टूटा है कोहे गम में परेकाह ले खबर। मंजिल नहीं अजीज़ जुदा लोग नाशनास, टूटा है कोहे गम में परेकाह ले खबर। नई मंजिल है, कब्र की मंजिल नई मंजिल है और वहाँ जो है अजीज़ सब नए नए हमारे अजीज़ लोग पहुँचे हैं कब्र में मट्टी देने के लिए। नाशनास लोग सब आए हैं और ऐसे आलम में मेरे पास मुनकिर व नकीर आएंगे और लोग हमें कब्र में डाल के जाएंगे, मुनकिर नकीर आएंगे। इस कोहे गम में जो है परेकाह मेरा जो है कोहे गम में टूटा जा रहा है। कहा कहते हैं उस घास को जो सूखी हुई है और कटी हुई है। तो जैसे कटी हुई घास और सूखी हुई घास को डबल फिक्र होता है, एक तो ये कि वो सूखी हुई घास है, दूसरी है कि कटी हुई है। इसी तरीके से कोहे गम में हम भी कटे हुए हैं और हम भी सूखे हुए हैं। सरकार, कब्र की मंजिल मेरे लिए अजीब मंजिल है। इस घटाटोप अंधेरी में और कब्र के आलम में मेरी मदद फरमाइए, मेरी बिगड़ी बनाइए। वो सख्तियाँ सवाल की वो सूरतें मुहीब, ए गमज़दों के हाल से आगाह ले खबर। कि मुनकिर नकीर कब्र में आएंगे और सख्ती के साथ सवाल करेंगे और मुहीब सूरतें लेकर आएंगे। मुहीब मने डरावनी सूरतें बनाकर मुनकिर नकीर लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े दांत निकाल कर ज़मीन को चीरते और फाड़ते हुए कब्र में पहुँचेंगे। मुहीब शक्ल देखकर, जिसकी शक्ल को देखकर ही कब्र का इंसान जो अगर बदअमल होगा, काफिर होगा, तो उसके लिए बहुत बड़ा अजाब होगा। तो सरकार, ये मुहीब शक्ल वाले फरिश्ते सख्ती के साथ सवाल कर रहे हैं और हम सख्त रंजो गम में मुब्तला हो चुके हैं। तो ऐ गमज़दों के हाल से आगाह ले खबर। आप आलिम गैब हैं, आपको गमज़दों के हाल की खबर है। मैं कितना बड़ा गमज़दा हूँ ये भी आपको मालूम है, लिहाजा आप मेरी खबर लीजिए और कब्र के आलम में मेरी मदद फरमाइए। मुजरिम को बारगाह अदालत में लाए हैं, तख्ता है बेकसी में तेरी राह ले खबर। कल क़यामत के मैदान में हर मुजरिम को खुदा की बारगाह अदालत में फ़रिश्ते ले जाएंगे। मैं भी एक मुजरिम हूँ, मुझे भी फ़रिश्ते बारगाह खुदा की अदालत में लिए जा रहे हैं। अब ऐसे आलम में ये मुजरिम का सहारा कौन बनेगा, किसकी तरफ तकेगा। मैंने सुना है, हदीसों में पढ़ा है कि आप शाफ़े महशर हैं। महशर के मैदान में गुनहगारों की शफाअत फरमाने वाले आप हैं, लिहाजा मैं आपकी तरफ तक रहा हूँ
तकता है बेकसी में तेरी राह ले खबर। इस बेकसी के आलम में, इस बेबसी के आलम में मैं तेरी तरफ तक रहा हूँ। ऐ मेरे आका, इस क़यामत के माहौल में जब बारगाह अदालत इलाही में मुजरिम बनाकर मुझे फ़रिश्ते ले जा रहे हैं, आप मेरी खबरगिरी फरमाइए और अदालत इलाही से हमारी शफाअत फरमाकर जन्नत के दुखूल का असबाब मुहैया फरमा दीजिए। अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे, मेरा है कौन तेरे सिवा आह ले खबर। अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे, जिनके पास अमल है, रोज़ा है, नमाज है, दान खैरात है, क़यामत के दिन उनके अमल काम आ जाएंगे। और मैं तो बेअमल हूँ, गोया कि ये उनकी आजिज़ी इनकिसारी है। सब कुछ होते हुए भी वो सबसे बड़ा सहारा शफाअत रसूल को समझते हैं। अपनी रोज़ा, अपनी नमाज, अपनी इबादत को वो हेज समझते हैं आला हज़रत, और मेरे सरकार मदीना की ज़ात को सबसे बड़ी ज़ात समझते हैं, और उनकी शफाअत को और उनकी निगाह करम को अपना सबसे बड़ा ज़रिया समझते हैं। इसीलिए वो फरमाते हैं, अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे। जो लोग अहले अमल हैं, कल क़यामत के मैदान में उनके अमल उनको काम आ जाएंगे। मेरा है कौन तेरे सिवा आह ले खबर। मेरा ना रोज़ा है, यानी मुझे ना रोज़ा पे भरोसा है, ना नमाज पे भरोसा है, न किसी दूसरी इबादत और दानो खैरात पे भरोसा है, या सरकार मदीना मुझे आपकी ज़ात पे भरोसा है। क्योंकि आपकी ज़ात हुआ है कि अल्लाह ने फरमा दिया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कि मुजरिम जो लोग बन जाएं वो आपका सहारा लें, आपके दरबार में आ जाएं, आप उनके लिए दुआ कर दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमाएगा। तो सरकार, मैं आप पर नज़रें उठाए हुआ हूँ, आपकी राहें तक रहा हूँ। आप मेरी मरकद में, मेरे महशर में और मेरी हर बिगड़ी के आलम में तशरीफ़ ले आएँ, मेरी बिगड़ी बना दें, मेरी नैया पार लगा दें, और मेरे मुरझाए हुए चेहरा को पुरनूर और मुनव्वर फरमा दें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।